Hello children, good morning and we are there today to begin with the new chapter on statistics in standard 11. Statistics you have learnt in your 10th standard, right? You learned how to calculate mean, which you also call by the name of average. तो mean कैसे calculate करना है, how to calculate median and how to calculate mode. So you learned all these three things in your 10th standard, and of course a majority of the work which you had done in 10th standard, you are going to make use of that knowledge in standard 11th. Now here, to begin with, we are going to deal a word called as mean deviation or average deviation. Now, why should we study deviation and what does it mean? तो deviation का मतलब है आपका जो main value है उससे आपका आंसर कितना कम या कितना ज़्यादा होता है, that is called as the deviation. For example, now say in an experiment in chemistry, the teacher wants to find out how much you are accurate in doing your experiment. So when she does the exact calculation herself, she finds out that according to so and so readings, the answer which you are supposed to get is, say for example 10. तो आपको exact answer 10 आना चाहिए. Like, but when you take the reading, say you get an answer 9.5, maybe your friend gets an answer 10.2, somebody else gets 9.9, somebody else gets 8. अब कौन कितना सही है? How to give marks to these children? Everybody has done the experiment. तो मेन आंसर जो 10 है, बच्चे उससे कितना डेविएट होते हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स रख सकते हैं. वन यूज. दूसरा, फैक्ट्री में whether the product is how much pure. Say for example, purity of the product should be, say for example, the same example you have to take, say purity of the product should be 10, and say you have got the product purity as 9.7 or 9.5 or 9.3. Should you use the material for the further process? तो how much you deviate from your answer. जैसे कि अगले एक्सपेरिमेंट जो एग्जाम्पल मैंने दिया था केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट का, सपोज मेन आंसर हैज टू बी 10, लेकिन किसी को मिला है 8. तो the teacher may say that no, the answer is fully wrong. According to her, she will allow you to say that your experiment was done correct if your answer goes -2 or +2 within that range. तो अगर आपको 10 आंसर आना चाहिए, तो सपोज आपको 9.8 से लेकर के 10.2 के बीच में आपका आंसर आया है, तो she may say that okay, your experiment was correct. But suppose if you do not get your answer from the range 9.8 to 10.2, -2 and -0.2 and +0.2, she is allowing you this range. But suppose you get an answer say 10, or so suppose you get an answer say 8, तो आपका आंसर तो मेन रेंज से बहुत दूर है. That means your experiment is wrong, and she will say that go and redo the experiment. Purity of a product is to be checked in the company. So the company will allow to pass the product to the second stage. Say for example 10 should be the perfect purity, and company allows 0.5 का difference. So say if the purity is 9.5, right, 10 होना चाहिए, 0.5 का डिफरेंस अलाउ करती है अगर कंपनी, तो से आपको 9.5 और 10 के बीच का अगर आंसर है तो प्रोडक्ट कैन बी पास टू द नेक्स्ट स्टेज. बट इफ नो, देन यानी कि व्हाट आर यू डूइंग,
आप हर बार क्या चेक करते हो कि आपके मेन आंसर से आपका जो आंसर आपको मिला है वो प्लस या माइनस कितना दूर जाता है फ्रॉम द मेन रेंज, कितना दूर जाता है मतलब कितना डेविएट करता है फ्रॉम द मेन आंसर। तो दिस इज हाउ you can find out the purity या फिर whether you are supposed to do the experiment, redo it, or it is correct. All this can, and many other fields it is used, right? So use of this concept of mean deviation about the mean or about the median is very important and useful in your day-to-day life, and that is the reason you should learn the topic of mean deviation about mean or median in your topic of statistics, right? So now let us go to an example कि अगर आपको mean deviation calculate करना है तो कैसे calculate करोगे। तो we'll see this through an example and we'll learn what is the formula, what is the method to calculate average deviation about या mean deviation about the mean. So now let us see this xi. I wrote a column xi. This xi 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 17. These are the values of your observation of जो भी experiment आपने किया होगा। तो हर बार आपने जो observe किया, the values of the observations are written over here 4, 7, 8, 10 up to 17. आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो कभी भी अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कि अगर आपको x1, x2, x3, x4 ऐसे कुछ वैल्यूज दिए हैं, यहाँ पे हमें 8 वैल्यूज दिए हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17। 8 वैल्यूज आर गिवन टू यू। ये 8 वैल्यू का पहले आपको टोटल करना पड़ेगा। दैट टोटल विल गिव यू व्हाट? सिग्मा xi। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन व्हिच वी लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड? x bar is equal to sigma xi upon n, where n is the number of observation। तो पहले हम इस कॉलम का टोटल करेंगे। तो 4 + 7 + 8 + 9 up to 17 सबका टोटल किया तो द आंसर केम आउट टू बी 8080। द आंसर इज कमिंग 80। तो हम सबसे पहले मीन यानी कि एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो x bar is equal to sigma xi upon n। पहले कॉलम का टोटल आया है 8080। सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस 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 किया तो यू गॉट योर आंसर एज 8080। अच्छा, अब आपको कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए थे? तो यू वर गिवन 8 ऑब्जर्वेशंस। तो 80 upon 8 दैट इज सिग्मा xi, यानी कि सिग्मा का मतलब है, यू ऑल्सो सम ऑफ यू कॉल इट एज समेशन xi ऑल्सो। समेशन xi बोलो, सिग्मा xi बोलो, मीनिंग इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 80, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 8, 80 upon 8 गिव यू एन आंसर 10। तो ये जो 10 मिला वो क्या है? आपका मीन है। तो मीन यानी कि एवरेज इज 10। अब सेकेंड कॉलम में आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। हर एक xi यानी कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपका मीन माइनस करना है और बाद में मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस जब आप लोगे तो आपका आंसर भले नेगेटिव आया हो लेकिन आपने मॉड्यूलस लिया तो दैट विल बिकम प्लस। तो लेट अस सी द फर्स्ट वन। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है 4 यानी कि 4 माइनस यानी कि xi माइनस x बार यानी कि अभी आपने जो कैलकुलेट किया ना 10, तो 4 माइनस 10 कितना होता है? -6। लेकिन -6 का मॉड्यूलस लिया आपने तो -6 का मॉड्यूलस लेंगे तो दैट गिव्स यू मॉड्यूलस ऑफ -6 which is +6 and you got it as 6. The second observation your xi is 7, तो xi minus x bar, तो that is your xi is 7, 7 minus 10, तो 7 में से -10 करोगे तो क्या मिलेगा? -3। लेकिन आप मॉड्यूलस ले रहे हो इसलिए आंसर विल बी +3। तो therefore +3। then you go to the next 8 minus 10
आंसर इज -2, लेकिन मॉड्यूलस ले रहे हो तो मॉड्यूलस ऑफ -2 इज +2। वैसे हर एक का मॉड्यूलस फाइंड आउट करोगे तो यू गॉट दीज आंसर्स 6, 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन एंड ऑन। और ये जो आंसर्स मिले हैं वो सारे आंसर्स का आपको ऐड यानी कि टोटल करना है। तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 and 10 that is 24। तो इसका आंसर मिला आपको 24। नाउ कम्स एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन की फॉर्मूला है समेशन यानी कि सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। समेशन यानी कि टोटल मारना है। किसका टोटल लेना है? मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार के कॉलम का टोटल लेना है। इसीलिए टोटल समेशन मतलब टोटल, टोटल किस कॉलम का टोटल? मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार के कॉलम का टोटल अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन लिए थे हमने एंड 24 इज द टोटल आंसर ओवर हियर। तो 24 अपॉन 8 यानी कि द आंसर इज 3। तो आपको जो है मीन डेविएशन, आपके एक्सपेरिमेंट का मीन डेविएशन आपको 3 मिला। नाउ जो मेन आंसर से जितना डेविएट करता होगा ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो व्हाट इज दिस चैप्टर गोइंग टू टीच यू? इट्स गोइंग टू टीच यू टू कैलकुलेट हाउ योर accuracy is nearer or far away from your main observation value. So mean deviation you got it as 3. Let's go to the next question. Okay, we'll do a similar type of question which we did right now, wherein you are given experimental observations 38, 70, 48, 40 and so on, and you are asked to calculate मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो एज पर योर प्रीवियस क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का कॉलम है, xi का कॉलम है, पहले हम xi को लिख देंगे एंड देन वी ऐड अप ऑल द xi एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 500, दैट इज 500, राइट? नाउ when you get this total 500, now we are ready to calculate our average या mean जिसको बोलते हैं over here। तो mean is summation of all observation values upon the number of observation values। तो सारे observation का total जो है हमें 500 आया था and there were total 10 observatory values in all। So 500 upon 10 and therefore you got your average to be 5050। So your average is 550, 5050। Now what are you supposed to do? In the second column, modulus of xi minus x bar। xi मतलब आपका फर्स्ट कॉलम में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो माइनस द एवरेज वैल्यू। तो आपका वैल्यू है 38, 38 माइनस 50 करिए तो -12, -12 लेकिन मॉड्यूलस साइन है तो मॉड्यूलस ऑफ -12 इज गोइंग टू बी +12। देन 70 माइनस 50 जो आपका वैल्यू होता है उसमें से 50 माइनस करना है। तो 70 माइनस 50 इज 20 एंड मॉड्यूलस ऑफ 20 इज 20। 48 माइनस 50 इज -2, -2 का मॉड्यूलस इज +2। 40 माइनस 50 मॉड्यूलस ऑफ -10 विच इज +10। ऐसे करके सारे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे आप एंड द टोटल करेंगे उस कॉलम का। द टोटल यू गॉट इट एज 84, right? So now summation of the formula to calculate mean deviation, now by now you must have remembered। So mean deviation is summation of xi minus यानी कि सेकेंड कॉलम का जो टोटल आपको आया है that upon the number of observation। तो सेकेंड कॉलम का टोटल आपको मिला है 84 and upon 10 and 84 upon 10 gives you an answer 8.4, right? Let's go to the next question. Okay children, now you had last year learned how to calculate median। तो median में आप क्या करते थे? पहले you arrange all your observations in the increasing order। फिर आप number of observation को count करते हो कि आपको कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। 11 है, 10 है, 16 है, 20 है, कितने ऑब्जर्वेशन है। जो नंबर आपको मिलता है, से फॉर एग्जांपल 20 ऑब्जर्वेशन,
तो 20 इज एन इवन नंबर। या फिर सपोज आपको दिए गए हैं 7 ऑब्जर्वेशंस, तो n इज इक्वल टू 7, 7 इज एन ऑड नंबर। तो मीडियन जो है उसकी फॉर्मूला दोनों के लिए अलग पड़ेगी। अगर n ऑड नंबर है तो फिर फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन विल बी n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। और अगर n एक इवन नंबर है तो फिर n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन एंड प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन का टोटल होगा। क्यों? क्योंकि सपोज आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? पहला दूसरा छोड़ा, लास्ट में से चौथा पांचवा छोड़ा, तो मिडल ऑब्जर्वेशन इज 3। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जर्वेशन है तो मिडल ऑब्जर्वेशन आप किसको बोलेंगे? आप दोनों तरफ से 4-4 ऑब्जर्वेशन छोड़ोगे तो 4th और 5th दोनों मिडल हो जाएंगे। तो इन दैट केस 4th प्लस 5th दोनों ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है, दोनों ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है एंड एवरेज निकालना है। दैट इज हाउ यू विल गेट योर मीडियन। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मीडियन। Okay children, let's go to the next question. Whatever observations you had, you arranged all those observations first in the increasing order. अगर mean deviation about the mean की बात है तब उस केस में आपको you don't have to arrange it in increasing order, क्योंकि average निकालने के लिए तो just sum of the observation upon number of observation चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियन की बात करने वाले हो तो आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की बात करनी है, और जब पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की बात करनी होती है तो आपको ऑब्जर्वेशंस को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग, वैसे दोनों चलता है, बट यू नेवर फ्लिकर, यू ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर हेड एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. So I arranged my observations in the increasing order 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17 and 18, right? And I counted up all the observation. So total I came to know that I have 12 observations. यानी कि n is equal to 12. And what is this 12? 12 is an even number. So now you are supposed to apply formula of median for the even number. And formula of median for the even number is n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation. n upon 2 यानी कि n आपका क्या है? 12. तो 12 upon 2 करेंगे, 12 upon 2 करेंगे तो that will come as 12 upon 2 is 6. तो 6th observation plus 6 plus 1 यानी कि 7th observation and upon 2. अब आप काउंट करिए, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपका 13 है एंड सेवंथ ऑब्जर्वेशन आपका 14 है। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 13, सेवंथ ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड अपॉन 2 करना है। 13 प्लस 14 का टोटल होता है 27. 27 upon 2 if you are going to do divided by 2 you will get it as 13.5. तो आपका जो मीडियन है वो निकला 13.5. एक बार जब आपका मीडियन निकल आता है तो यू आर गोइंग टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम मेथड विच यू हैड फॉलोड फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन. तो वहां पे आप फर्स्ट कॉलम में अपना xi लिखा करते थे एंड सेकेंड कॉलम में xi माइनस x बार लिखते थे अगर मीन है तो. लेकिन यहाँ मीडियन है तो we'll write modulus of xi minus m because we are going to talk about deviation about the median, right? So minus the median value. तो 10 is your observation and your median value जो अभी आपने calculate किया, that median value you got it as 13.5. तो 10 में से 13.5 माइनस करिए तो माइनस 3.5, लेकिन मॉड्यूलस है इसलिए इट इज गोइंग टू बी प्लस 3.5. 11 माइनस 13.5 तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2.5, लेकिन मॉड्यूलस है इसीलिए प्लस 2.5. देन 11 माइनस 13.5 अगेन माइनस 2.5, उसका मॉड्यूलस दैट इज प्लस 2.5. वैसे हर एक ऑब्जर्वेशन में से 13.5 को सब्ट्रैक्ट करिए
and when you subtract from each observation you get these values over here. अब ये जो values आपको मिली हुई होती है वो पूरी values का आपको total करना है. See children, if you are going to think about your JEE examination, try to calculate without a calculator because they don't allow calculations by calculators over there. But if normal exams are there, you are allowed with a calculator, so you can use a calculator and total it up all, and that total comes out to be 28. Now, when you get the total 28, then आप अब वापस जैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन की फॉर्मूला थी ना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, सेम फॉर्मूला है, एक्स बार की जगह पे एम आएगा, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम का मॉड्यूलस का जो भी टोटल आया होगा सेकेंड कॉलम का अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सेकेंड कॉलम का टोटल आपको मिला था 28 and therefore upon 2 and 28 upon 2 that gives you 2.3. Now we'll meet in the next session children, and till then goodbye, take care.